Hello, dear students. In last class, we have discussed about the birth cry, the first functional breath, and birth asphyxia. Now, today we will discuss about the TABC of neonatal resuscitation. In this class, we will discuss about what is resuscitation, how it is being done, and what are the TABC of the resuscitation. When will be these procedure done during resuscitation, or how much time we will spend on the resuscitation? These all will we will discuss in next class. Today we will discuss about what to do and how to do. In next class we will discuss about when to do. तो नेक्स्ट क्लास में जो हम रिससिटेशन एल्गोरिदम की बात करेंगे, जबकि इस वाली क्लास में जो है हम कोशिश करेंगे कि हम बात करेंगे कि क्या करना है रिससिटेशन में, करना क्या है और कैसे करना है। तो कोशिश करेंगे कि जितना कंसाइज रहे क्लास उतना अच्छा है। तो बेसिकली रिससिटेशन की जरूरत कब पड़ती है? 90% ऑफ द बर्थ्स द ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रायूटेराइन टू एक्स्ट्रायूटेराइन एक्जिस्टेंस और mainly the respiratory function जो है there is smooth transition from the intrauterine to extrauterine life, while only 10% of the all the births require some assistance. They also require minimal assistance. uh, Only 1% of the birth may require extensive resuscitative measures like बैक एंड मास्क वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन जो है वो बहुत कम परसेंट में 1% में ही जो है जरूरत पड़ती है। तो रिससिटेशन वर्ड बार बार आ रहा है। व्हाट is this resuscitation? Basically, the resuscitation is the action or the process of reviving someone from unconsciousness or apparent death. कि कोई डाई कर रहा है, उसका जो है बेसिकली resuscitation word is used for cardiopulmonary resuscitation. Usually the ultimate cause of death is either respiratory failure, someone stops breathing तो थोड़ी देर उसका हार्ट फंक्शन करेगा, then it will stop, और someone's ultimately heart जो है रुक गया है, बीट नहीं कर रहा है, तो यूजुअली जो है कार्डियोपल्मोनरी resuscitation is needed during apparent death, and that process of reviving a person from apparent death is known as resuscitation. वर्ड मीनिंग क्या है इसका? बेसिकली जो रिससिटेशन वर्ड बना है वो लैटिन ओरिजिन से बना है, जिसमें कि री मतलब होता है बैक, बैक और अगेन। जैसे हम बोलते हैं री जो है एग्जाम होना है, री मतलब अगेन, एंड ससिटेयर से ससिटेशन वर्ड बना है, तो ससिटेयर मीन्स रेज करना। तो रेज्ड अगेन वर्ड जो है रिससिटेट का मीनिंग हुआ रेज्ड अगेन, और रिससिटेशन जो है रिससिटेट हुआ कि रेज अगेन, और resuscitation is the process of raising or reviving someone again from the death. That is known as resuscitation. So neonatal resuscitation means the resuscitation which is performed in a neonate is neonatal resuscitation. And there are some differences between neonatal and adult resuscitation or child resuscitation और adult resuscitation में कुछ अंतर रहते हैं, वो आगे हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स क्या हैं, रिससिटेशन क्यों की जाती है, क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो मेन प्रिंसिपल्स आर टू असिस्ट द न्यूबॉर्न टू एस्टेब्लिश एडिक्वेट वेंटिलेशन, कि वेंटिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर सके, ब्रीदिंग एस्टेब्लिश कर सके, उसके लिए हम रिससिटेशन करते हैं। एंड द पल्मोनरी परफ्यूजन शुड बी मेंटेन्ड, there should be adequate cardiac output, baby is able to generate adequate cardiac output as well as to prevent any heat loss. So these are four basic principles for resuscitation. इन चार principles को ध्यान में रख के ही जो है हम resuscitation करते हैं। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिससिटेशन? तो ये हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि बेसिकली जो है
There are some physiological transition just after birth from placental to pulmonary respiration or pulmonary जो alveoli हैं they are fluid filled, and these fluid to be replaced by air it requires some powerful breaths, first few breaths, or if baby is in apnea or is gasping or asphyxia में है तो this fluid may not be replaced. Thus, when we start artificial ventilation, we require somewhat higher pressure for initial 2-3 breaths, and this pressure is around 30 to 40 centimeter of water. While subsequent breaths only we have to give 15 to 20 centimeter of the water pressure जो है each breath के साथ देना पड़ता है. And second thing is if we are ventilating some newborn baby who is not breathing by himself, then sometimes there may be heart rate may fall and there may not be adequate pulmonary perfusion. As such, we are providing oxygen or air up to the alveoli, but from there to provide the air or oxygen to all the tissues, it is a function of circulatory system. And if there is circulatory failure, they have to provide artificial circulation, that is through chest compressions or medications or volume expanders. So first principle is to maintain adequate ventilation. Either baby is maintaining adequate ventilation by himself by breathing, or we have to provide artificial breathing. Second is if we are providing ventilation but baby is not improving, there may be circulatory failure or there may be cardiac depression. So we have to provide artificial circulation by various means. And third main principle is physiological basis is sometimes we are providing chest compressions, heart is beating, but pulmonary arterioles are having vasoconstriction due to acidosis, and that is preventing the blood to enter the pulmonary vasculature. And we are providing ventilation as well as artificial circulation, but we are not able to revive the child. That may be due to acidosis, and then we have to correct this acidosis only and only then child will show improvements. So these principles जो है को हम फॉलो करेंगे अपने TABC. तो बेसिक स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन क्या होते हैं? Follow the mnemonic TABC. T is for temperature, A for air base, B for breathing, and C for circulation. So we have to maintain temperature throughout the resuscitation process, while other procedures are in sequence of ABC. ABC, first we have to look for patency of air base, and patency of air base we have to maintain by two main procedures. One is proper positioning of the newborn, another one is suction of the air base. While after maintaining air base, we have to initiate breathing, and child may start breathing by himself, or we have to stimulate for breathing or provide artificial ventilation in the form of intermittent positive pressure ventilation. And third is circulation. If एयर बेस एंड ब्रीदिंग चाइल्ड जो हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं एंड स्टिल देयर इज need of circulation, there is circulatory failure, then circulation, artificial circulation may be or provided or maintained through chest compression or some use of medications. तो इस TABC की हम जो TABC है we have to परफॉर्म दिस ऑल थ्रू द रिससिटेशन. इन चार चीज़ों पे हमको ध्यान देना है कि इन चार चीज़ों को हम जो है मेंटेन करें, टेम्परेचर थ्रू आउट, देन एयर बेस, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. तो इनकी बारी बारी से हम जो है अब बात करेंगे. तो हाउ टू मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन करने पे पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है, बट मोटे मोटे तौर पे बात करें तो बेसिकली जो हम पहले बात की कि लेबर रूम जो टेम्परेचर होता है इट इज सूटेड फॉर द डॉक्टर्स, नॉट फॉर द न्यू बॉर्न. तो इसलिए जो वी हैव टू क्रिएट अ माइक्रो environment which is warm enough to maintain the temperature of the newborn baby. For that we have to switch on the radiant warmer prior to the delivery, at least 30 minutes prior to delivery we have to switch on the radiant warmer. ओपन केयर सिस्टम जो अब आ गए हैं, अगर आपके पास नहीं है, घर में है, तो जो जहाँ पे भी डिलीवरी हो रही है, यूजुअली अब हॉस्पिटलाइज डिलीवरी, गवर्नमेंट भी बोलती है कि हॉस्पिटलाइज डिलीवरी होनी चाहिए, एंड हॉस्पिटल
usually have radiant warmer, but अगर radiant warmer नहीं है तो we can use 100 watt wall जो electricity bulb हैं उनको भी यूज कर सकते हैं. और we have to keep enough pre-warmed linen sheets for warm welcome. तो वार्म सीट्स फॉर वार्म वेलकम याद रखना है कि हमारे पास जो है इनफ सीट्स पहले से ही गर्म की गई हों जिसमें हम बेबी रिसीव करेंगे और जिससे हम बेबी को ड्राई कर सकते हैं. पुट द बेबी एज सुन एज बेबी, ये तो डिलीवरी से पहले के स्टेप हो गए. जैसे बेबी हमारे पास आया तो नाउ हाउ टू मेंटेन टेम्परेचर. तो पहला काम या तो हम जो बेबी को पुट अंडर रेडियंट वार्मर के नीचे रख देंगे या फिर मदर्स एब्डोमेन पे एज कंडीशन इज देयर कि अगर रिससिटेटिव केयर की जरूरत है बेबी को, देन baby is taken to the resuscitation corner inside the labor room, and in resuscitation corner we have radiant warmer and we will put the baby under radiant warmer. और अगर बेबी क्राई कर रहा है, there is no need of resuscitation, then we can put the baby on the mother's abdomen. वहाँ पे मदर से उसको हीट मिलेगा तो वहाँ पे भी जो हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं. देन नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर क्लियरिंग एयरवेज. एयरवेज पेटेंसी मेंटेन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम जो करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ड्राई इफेक्टिवली. तो ड्राई करना है. और इफेक्टिवली वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि यूजली जो है बेबी हैव लार्ज हेड, सरफेस एरिया ऑफ द हेड जो है बेबी का बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी के कंपैरिजन में. अगर एडल्ट्स में हम बात करें तो वी हैव अ स्मॉलर हेड इन कंपैरिजन टू अवर बॉडी सरफेस एरिया, वाइल न्यूबॉर्न्स में एक लार्ज हेड होता है. तो हेड को सुखाना, हेड में जो है वाटरी कंटेंट ज़्यादा रहता है, वहाँ से इवेपोरेटिव लॉसेस और हीट लॉसेस होंगे, तो उसको सुखाना, उसको क्लीन करना जो है ज़रूरी है, ड्राई करना जो है ज़रूरी है. देन एंड दिस शुड बी डन after clearing airways because drying produce stimulation, and if airways are not cleaned, baby with stimulation, baby who was not previously breathing, आफ्टर स्टिमुलेशन, जैसे हम ड्राई करने के लिए उसको जो है लिनन शीट से या गॉज पीसीस से क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे. यूजली लिनन शीट या टॉवल्स यूज कर रहे हैं हम, तो उससे जो है स्किन की स्टिमुलेशन होगी और उससे ब्रीदिंग शुरू कर सकता है. एंड he may have oral cavity filled with blood or mucus or something else that may be taken into the respiratory tract with that particular deep breath. तो इसलिए जो है हमको पहले एयरवेज क्लीन करना है, माउथ नोज क्लीन करना है, उसके बाद ही ड्राई करना है. देन नेक्स्ट थिंग, ड्राई करने के बाद जिस लिनन शीट में हमने लाए हैं उसको, उसी से हमने उसको ड्राई किया, तो उसको हम रिमूव करेंगे. अदरवाइज जो है वो गीली सीट में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर लॉस होगा. तो उसको रिमूव करना है अपने को लिनन शीट को, और अनदर लिनन शीट उसको देनी है, उसके उसमें उस पे वार्म लिनन शीट पे उसको रखना है. देन कवर इफेक्टिवली. इफ वी आर नॉट यूजिंग ओपन केयर सिस्टम या रेडियंट वार्मर के नीचे नहीं रखा है, मदर स्लैब पे है, तो बेबी ब्रीथ कर रहा है, हमको ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं करनी है. अगर ज़रूरत नहीं है, बेबी हेल्दी है, देन वी कैन कवर द बेबी टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बेबी. So this is how we maintain temperature. This is radiant warmer. तो radiant warmer पे यहाँ पे जो है हमारे पास हीट सोर्स रहेगा. यहाँ पे हमारी बेबी ट्रे जो है या बेबी को लिनन शीट में लेटाएंगे. तो दिस इज हाउ जो है ड्राइंग ऑफ द बेबी. ड्राई कैसे कर रहे हैं बेबी को हम, जो है पूरी तरह से उसी लिनन शीट में, जो है उसी लिनन शीट से हम उसको ड्राई कर रहे हैं. स्काल्प एरिया पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट रहता है और सरफेस एरिया भी स्काल्प का हेड का ज़्यादा रहता है, तो उसको भी अच्छे से ड्राई करना है. देन वी कैन say that we have dried effectively baby. Then do not forget to remove this wet linen sheet. तो ये लिनन शीट जो है हमको हटानी है क्योंकि इससे जो बेबी हाइपोथर्मिया में जा सकता है. हाइपोथर्मिया will deteriorate the condition of the baby. Then next step, temperature is being maintained throughout the resuscitation. Next step की इनिशियल स्टेप ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर हमने कर दिया. उसके बाद हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एयरवेज एंड ब्रीदिंग. तो एयरवेज जो है, पेटेंसी ऑफ एयरवेज इज मेंटेन्ड बाय टू मेन प्रोसीजर्स. वन इज पोजिशनिंग, अनदर वन इज सक्शन.
Positioning will align the airways, upper airways with lower airways. There will be no obstruction produced by some twisting of the neck, और external से हम जो है कोई प्रेशर नहीं डालेंगे एयरवेज से जिससे कि एयरवेज की अलाइनमेंट बिगड़ जाए. तो पोजिशनिंग इज वेरी मच नीडेड टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द एयरवेज. और पोजिशनिंग कैसे करते हैं हम? आइदर वी position the baby in supine position और मे बी on the one side, lateral side में भी जो है पोजिशन कर सकते हैं, बट विथ स्लाइट एक्सटेंशन ऑफ द हेड. एक्सटेंशन, हेड की हल्की सी एक्सटेंशन रखेंगे जिसको कि हम स्निफर पोजिशन बोलते हैं. और इस एक्सटेंशन के लिए जो है वी मे समटाइम रिक्वायर शोल्डर पैड और शोल्डर रोल टू बी केप्ट अंडर द शोल्डर ऑफ द न्यूबॉर्न. इसलिए उसको शोल्डर पैड या शोल्डर रोल बोला है कि न्यूबॉर्न के शोल्डर के नीचे उसको रखते हैं जिससे कि हेड की हल्की सी एक्सटेंशन हो जाएगी जिसको कि हम स्निफर पोजीशन बोलते हैं. आगे की इमेजेस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किस पोजीशन को स्निफर पोजीशन बोलते हैं और कैसे उसको अचीव करना है. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे स्निफर पोजीशन सही नहीं है क्योंकि हेड रोल उसके नीचे नहीं रखा है. तो तीन बेसिक चीजें जो हैं, बेसिकली दिस इज फॉर एंडोट्रेकियल इंसर्शन और एनेस्थीसिया वालों की बात करते हैं. स्निफर पोजीशन एनेस्थीसिया वाले बात करते हैं ज़्यादा. तो यहाँ पे हमने वही चीज़ देखनी है. तो एक तो ग्लैबल और चिन की प्लेन जो है इट शुड बी हॉरिजॉन्टल. इट इज़ रिक्लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल. तो जैसे एक्सटेंशन होगी तो ये जो है हॉरिजॉन्टल होने लगेगी, नियर हॉरिजॉन्टल. दूसरा जो है आपका जो स्पेस है, एंटी नेक स्पेस है, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ भी प्रॉब्लम है, इसलिए थंब डाउन है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है. थर्ड इज दिस पिन्ना जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस जो है, इस मियटस से आपकी स्टर्नल नॉच तक, स्टर्नल नॉच से इसकी लाइन जो है इट शुड आल्सो बी स्ट्रेट. तो ये जितनी स्ट्रेट होगी उतना जो है एयरवेज अलाइंड होंगे. तो दिस पर्टिकुलर पिक्चर शोज दैट पोजीशन इज नॉट गुड. स्नीफर पोजीशन नहीं है, इसमें शोल्डर पैड लगाने की जरूरत है. नाउ इन नेक्स्ट picture we can see that this position is good because we have put some shoulder pad and slides. जो नेक एक्सटेंशन और हेड एक्सटेंशन हमने कराई है इसमें. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्लैबुलर चिन प्लेट है, प्लेन है, वो ऑलमोस्ट जो है हॉरिजॉन्टल है. नेक स्पेस बढ़ गया है, जो एंटी नेक स्पेस है इट इज नाउ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड जो एक्सटर्नल नॉच और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस की प्लेन थी इट इज आल्सो horizontal. Then this is good position, it is sniffer's position, and this particular position should be maintained to maintain the airways patent. Next thing to maintain the airways patent is suction. तो एयरवेज हमने अलाइन तो कर लिया, बट एयरवेज के अंदर कुछ जो है कोई मटेरियल है, जैसे ब्लड है, मेकोनियम है, म्यूकस है, और कोई भी सिक्रीशंस हो सकती हैं, तो दैट कैन आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट एयरवेज. दैट पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड बाय सक्शनिंग द एयरवेज. तो सक्शनिंग कैन बी डन बाय इलेक्ट्रिकल सक्शन और मैनुअल सक्शंस भी आते हैं, फुट ऑपरेटेड सक्शंस भी आते हैं. देन previously these suction valve was used, now they are not in use. If we have suction machine but there is no electricity failure वाली condition में we should have manual things like this mucus extractor. तो mucus extractor से भी suction कर सकते हैं. suction अगर हम मशीन से कर रहे हैं तो इस टाइप जो वॉल मशीन्स बोलते हैं इनको, वॉल मशीन जो है यूजली इसमें 60 to 80 mm ऑफ HG सक्शन प्रेशर के साथ जो है हम सक्शन कर सकते हैं एक न्यूबॉर्न्स में. सक्शन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट जो सक्शन करेंगे, जो सिक्रीशंस को हम जो सक आउट करेंगे, इट इज़ फ्रॉम माउथ फर्स्ट एंड देन नोज. क्यों माउथ से करते हैं? because mouth is a large cavity, it will contain more secretions or more material. तो इसलिए जो अगर बेबी बीच में क्राई भी करने लग गया या ब्रीथ करने लग गया तो माउथ की ज़्यादा जो सिक्रेशंस हैं दे कैन गो इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नेजल कैविटी स्मॉल, इसलिए जो है माउथ, और माउथ बड़ी कैविटी है तो उससे स्टिमुलेशन कम होती है. इट इज़ डायरेक्टली अंडर विजन, तो मुंह उसका खोल के जो है हम सामने से देख के जो है सक्शन कर सकते हैं.
नोज की अगर पहले कर देंगे और उसको स्टिमुलेशन हुआ और माउथ की कैविटी में जो ज़्यादा सिक्रेशंस है, ब्लड है, म्यूकस है, कुछ भी जो भी है, इट कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक। जबकि माउथ में एक तो स्टिमुलेशन नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट विजन से है, तो जो हमारी सक्शन कैथेटर है वो ज़्यादा वॉल्स को टच नहीं करेगी, स्टिमुलेशन के चांसेस कम है। दूसरा जो है मटेरियल ज़्यादा होगा वहाँ पे, इसलिए जो उसको सक्शन करना ज़रूरी है पहले। तो इस तरह से 3-4 रीजंस हैं जिनमें हम माउथ से इसलिए हम पहले सक्शन करते हैं। सेकंड जो इसमें चीज़ देखनी है, जो प्रिकॉशंस रखनी है कि हम वी शुड यूज़ अ वाइड एफआर कैथेटर लाइक 10 एफआर, 8 to 10 एफआर कैथेटर हमको चाहिए। और मेकोनियम एस्पिरेशन है तो और भी बड़ी चाहिए, जैसे 12 तक जो हम एफआर कैथेटर हम यूज़ करते हैं। प्रिकॉशंस क्या रखनी है, वी शुड डू दिस सक्शन एज जेंटली एज पॉसिबल। बहुत हार्ड सक्शन नहीं करना है, इधर उधर जो है वॉल्स पे इंजरी नहीं करना है। एंड इट शुड बी इंटरमिटेंट, कंटिन्यूस सक्शन नहीं होनी चाहिए, इंटरमिटेंट करें। क्योंकि कई बार म्यूकस पे आपकी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो भी ओरल कैविटी पे उस पे सक्शन कैथेटर है और वो जो है म्यूकस मेम्ब्रेन टियर कर दिया तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। एक और चीज़, जब भी हम ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स, पहले ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स की सक्शन करते हैं, देन वी सक्शन नेजल कैविटी। तो ओरोफेरिंक्स की जब भी हम सक्शन कर रहे हैं, वी शुड नॉट गो फार बिहाइंड, बहुत पीछे तक नहीं जाना है। पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल को बार बार टच नहीं करना है कैथेटर से, क्योंकि दैट कैन प्रोड्यूस stimulation of vagus nerve and it can result in bradycardia. तो इसलिए जो है it should be gentle, that's why it should be gentle and intermittent. So this was all about ईयरवे पेटेंसी। यहाँ पे हमने प्रोसीजर करते हुए दिखाया है। यहाँ पे ओरल कैविटी सक्शन कर रहा है और डायरेक्ट विजन में कर रहा है। देन यहाँ पे नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में जो है बाद में करनी है और वो ब्लाइंड प्रोसीजर है, उससे स्टिमुलेशन हो सकता है और ओरल कैविटी की सिक्रेशंस जो है ले सकता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। देन ये आपने एयरवेज क्लीन कर लिए। देन ए के बाद बी है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में वी शुड स्टार्ट ब्रीदिंग यूजुअली जो है, जैसे हमने एयरवेज क्लियर किए उसके बाद हम ड्राई करते हैं बेबी को। ड्राई करते वक्त या एयरवेज क्लीन करते वक्त जो है देयर इज इनफ स्टिमुलेशन एंड बेबी इफ प्रीवियसली वाज नॉट क्राइंग नाउ विल स्टार्ट क्राइंग और ब्रीदिंग, बिकॉज स्टिमुलेशन जो है उसको सफिशिएंट मिल गया है। बट इफ दिस सक्शनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द बेबी does not start breathing in the baby or crying, then we can go for tactile stimulation by either rubbing back, या तो बैक को रब करते हैं या फिर फ्लिकिंग और रबिंग द सोल्स। तो सोल्स या बैक को जो हम स्टिमुलेट करेंगे, बट दिस स्टिमुलेशन शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3 टाइम। 2 बार फ्लिक किया और उसके बाद अगर बेबी क्राई नहीं किया तो we will go to the next step. We will not try फॉर मिनट्स जो है बहुत देर तक, बिकॉज जो अगले लेक्चर हम बात करेंगे, इट इज़ वेरी गोल्डन मिनट। फर्स्ट मिनट ऑफ द जस्ट आफ्टर बर्थ इन एस्फिक्सिएटेड बेबी इज गोल्डन मिनट। इस टाइम अगर हम बेबी को रिवाइव कर लिए तो डैमेज टू द ब्रेन विल बी मिनिमल। बट अगर इस टाइम हमने टाइम वेस्ट कर दिया कि उसको स्टिमुलेट ही करने के लिए कोशिश करते रहे कि स्टिमुलेट हो जाएगा, हम उसकी बैक रब कर रहे हैं, हमने 20 सेकंड 30 सेकंड वेस्ट कर दिए उसमें, तो ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू ओनली गिव 2-3 टाइम्स फ्लिकिंग ओवर सोल और आइदर फ्लिकिंग और रबिंग ऑफ द बैक, not more than that. We should not waste time in stimulation. This is procedure. तो कुछ दिस वन इज करेक्ट और दिस वन बैक में ऊपर से नीचे जो आप जो वो कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, या फिर वी कैन स्लैप द सोल और फ्लिक द सोल। तो फ्लिक कर सकते हैं या स्लैप कर सकते हैं। तो these are methods of stimulation. If stimulation have not worked, then we have to go for next step। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। बट करना क्या है नेक्स्ट स्टेप इज positive pressure ventilation. It is only required when stimulation have failed, and the indication of positive pressure ventilation are
Either baby is in apnea or gasping breathing, gasping respiration, heart rate has fallen to the less than 100 beats per minute, and there is persistent central cyanosis, then we starts intermittent positive pressure ventilation, yeah, sometime designated as positive pressure ventilation. And the most effective or most useful method is bag and mask ventilation. Why it is called bag and mask? There is a ambu bag or self-inflatable bag, and there is a mask. This assembly is known as bag and mask or ambu bag. आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीदिंग यूनिट, एम्बू बैग भी बोलते हैं इसको. तो बैग एंड मास्क इज बेस्ट इफ वी आर नॉट हैविंग बैग एंड मास्क इन होम सिनेरियो. वी कैन गो फॉर माउथ एंड नोज ब्रीदिंग. तो घर पे वो भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम बैग एंड मास्क पे ही बात करेंगे. तो बैग एंड मास्क की प्रोसीजर में क्या क्या ध्यान रखना है, आज हम प्रोसीजर्स की बात करेंगे. आगे हम जो है ज़्यादा बात करेंगे कि कब करना है, व्हेन टू डू. तो प्रोसीजर में बेसिकली जो है बैग एंड मास्क से हम वेंटिलेशन देते हैं, हम एयर पुश करते हैं बैग से और मास्क को अप्लाई करते हैं माउथ पे. वी हैव टू अप्लाई द मास्क ऑन माउथ एंड नोज, और उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ मास्क आता है. बच्चों में जो है सर्कुलर मास्क आता है, जबकि बड़ों में एनाटॉमिकल जो मास्क है ट्रायंगुलर मास्क होते हैं, जो आपके नोज के लिए और माउथ के लिए अलग स्पेस बना है. बच्चों में सर्कुलर मास्क आता है न्यूबॉर्न्स में. तो उस मास्क को हम माउथ एंड नोज पे अप्लाई करके देन वी विल press the bladder and will push the air into the lungs of the newborn. And this pushing of the air to the or providing of the artificial ventilation, the rate should be at least 40 to 60 breaths per minute. Some precautions क्या हैं उसमें कि we have to apply the mask by providing proper seals. अगर मास्क की सील सही से नहीं होगी तो there will be leakage and we will not able to inflate the lungs with the air. And to make proper seal, C and E याद रखना है. सील, सील, CE. तो C से हम जो है अप्लाई करते हैं मास्क को, और E से यूजली हम जो है मैंडिबल को आगे खींचते हैं सो दैट कि टंग फॉल ना करे. यूजली जो टंग फॉल कर सकती है और टंग फॉल करेगी जब माउथ बंद है, तो वो ओरोफेरिंक्स को ऑब्स्ट्रक्ट, एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी. तो इसलिए जो है ई से हम यहाँ पे मैंडिबल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंडिबल को आगे वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. और सी से वी आर मेकिंग सील. सी फॉर सील और ई फॉर एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल एंड सील ऑफ द मास्क. तो सी ई याद रखना है मास्क में जो हम पोजीशन बनाते हैं. देन इनिशियल ब्रीज की हमने बात कर ली कि 30 to 40 वाली देनी है, देन 15 से 20 वाली देनी है. प्रेशर कितना देना है? वी शुड ओनली गिव प्रेशर बाय वन थंब एंड टू फिंगर्स, जो इंडेक्स और मिडल फिंगर और थंब से ही प्रेशर देना है. बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो इट कैन कॉज रप्चर ऑफ द एल्विलाई एंड न्यूमोथोरैक्स कर सकते हैं. एग्रेसिव जो वेंटिलेशन या एग्रेसिव रिससिटेटिव मैन्यूअर्स बाय नॉन प्रोफेशनल्स और पैरामेडिक्स कैन यूजुअली रिजल्ट इन न्यूमोथोरैक्स. तो इनइफेक्टिव के बजाय वो क्या हो जाती है, एग्रेसिव में न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, और दैट इज आल्सो इनइफेक्टिव देन. और कैसे जो है एफिशिएंसी कैसे देखनी है कि देयर शुड बी राइज एंड फॉल इन चेस्ट जैसे हम जब ब्रीथ करवा रहे हैं. तो दिस इज हाउ सी एंड ई जो है कैसे बनाते हैं. तो सी से हम सील बना रहे हैं और ई से हम जो है एलिवेशन कर रहे हैं मैंडिबल की. तो दिस इज हाउ द मास्क इज बीइंग अप्लाइड. यूजुअली जब भी हम ब्रीथ कराते हैं तो वी आर ऑन द हेड एंड ऑफ द न्यूबॉर्न. हम हेड एंड पे खड़े होंगे और वन हैंड इज यूज्ड टू मेक एप्लीकेशन ऑफ द मास्क ओवर द फेस. और इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं. जब हम क्लिनिकल क्लासेस या फेस टू फेस क्लासेस होंगी ऑनलाइन क्लासेस के बाद, तो हम जब प्रैक्टिकली इन चीज़ों को बताएंगे कि आईज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आईज को कवर नहीं करना है, आई को डैमेज से बचाना है. ऑल दिस वी विल डिस्कस during that classes. Here it is only overview of some procedures. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे हम जो है प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं 2 फिंगर एंड 1 थंब जो है न्यूबॉर्न्स में. ज़्यादा प्रेशर कैन कॉज
pneumothorax by rupture of alveoli. Then इम्प्रूव कर रहा है बैग एंड मास्क से, उसको कैसे असेस करते हैं कि देयर इज इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट 100 से नीचे तब हम उसको इंडिकेट करते हैं, और हार्ट रेट इंप्रूव कर रहा है तो इट इंडिकेट कि हम जो है सही कर रहे हैं एंड देयर इज इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूविंग कलर, जो पहले साइनोज था अब कलर इम्प्रूव हो रहा है, या स्टार्टिंग ऑफ द स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, पहले ब्रीथ नहीं कर रहा था. एंड इम्प्रूविंग मसल टोन, यूजली अगर बेबी एस्फिक्सिया में है तो ही विल लॉस्ट मसल टोन, लिम्प हो जाता है, बिल्कुल फ्लैसिड से हो जाते हैं बेबीज. तो इम्प्रूवमेंट मसल टोन में हो रहा है. इट आल्सो इंडिकेट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज बीइंग गिवन प्रॉपरली और देयर इज इम्प्रूवमेंट विद द बैग एंड मास्क. If the baby is not improving, we have to reassess, and there may be the causes that inadequate seal may be there. There may be blocked airways कि हमने जो है एयरवेज अच्छे से पोजीशन और सक्शन से जो है एयरवेज पेटेंसी नहीं बनाई है, और there may be inadequate pressure sometime उससे राइज नहीं हो रहा. देन लास्ट थिंग इन TABC, तो A, B और C, लास्ट थिंग C. बड़ों में हम CAB की बात करते हैं. इफ एडल्ट इज डाइंग और नियर डाइंग, अपेरेंट डेथ हो रही है, देन we have to resuscitate. There we will go for chest compression first, then we will make patency of airways and start breathing. But here it is opposite, it is ABC. We have to maintain airways, then provide breathing, and then in last, if we are not able to revive the child and heart rate is still falling, then we have to maintain circulation by providing some measures like chest compression. तो बेसिक फिजियोलॉजिकल बेसिक की हमने पहले भी बात कर ली कि देयर इज नो यूज ऑफ वेंटिलेशन इफ pulmonary perfusion is poor, and heart also needs perfusion to pump. हार्ट को खुद ही ब्लड नहीं मिल रहा है तो वो काम नहीं कर सकता है. दैट्स वाई टू मेंटेन द सर्कुलेशन वी हैव टू do some maneuvers like artificial circulation by chest compression, or by cardiac stimulants, or maybe sometime volume expanders may be needed to maintain the circulation. की वॉल्यूम ही नहीं है, वी आर प्रेसिंग द हार्ट बट हार्ट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम है बहुत कम है, तो we have to provide expanders, plasma expanders or volume expanders. So to maintain circulation, there are basically two procedures. One is chest compression, and another one is use of medication. In chest compression, when it is required, or what are the indication, if the heart rate have fallen less than 60 minutes after 30 minutes of effective positive pressure ventilation, कि हमने जो है positive pressure ventilation दे रहे हैं and heart rate have fallen less than 60, then we have to do circulation by chest compression. तो chest compression हम करना तब start करते हैं. कैसे करेंगे? यूजली जो हम करेंगे, टू निपल लाइंस के नीचे, स्टर्नम पे, सेंटर ऑफ द चेस्ट में जो स्टर्नम है, टू निपल लाइंस के नीचे, तो लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम पे हम जो फिंगर्स रखेंगे, एंड इमीडिएटली अबव जिफॉइड को रप्चर नहीं करना है. वहाँ पे वी आर बेसिकली हैविंग टू टेक्निक्स. वन इज टू फिंगर टेक्निक्स, जो फर्स्ट इमेज में दिखाया टू फिंगर टेक्निक है, कि टू फिंगर्स हम उस पर्टिकुलर एरिया पे, निप्पल एरिया के नीचे जो है अप्लाई करेंगे. अनदर वन इज टू थंब टेक्निक, कि दो थंब उसी एरिया पे, उसी स्पेस पे, स्टर्नम पे अप्लाई करके वी विल प्रेस बैकवर्ड्स. और जब भी हम जो है रिससिटेशन करते हैं तो बेबी शुड बी ऑन अ हार्ड फ्लैट सरफेस. तो हार्ड फ्लैट इसीलिए कि फ्लैट होगा तो जो है अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए, और हार्ड इसलिए कि जब हम प्रेस करेंगे तो हार्ट शुड बी प्रेस्ड बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम. तो इसलिए जो है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एपी डायमीटर तक हमको जो उसको प्रेस करना है स्टर्नम को, सो दैट हार्ट इज प्रेस्ड एंड आर्टिफिशियल जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, आर्टिफिशियल सिस्टोल जो है जनरेट होना चाहिए. एंड दिस विल मेंटेन द सर्कुलेशन. हम आर्टिफिशियली जो है सिस्टोल जनरेट कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहे हैं. एंड व्हाट शुड बी द रेट शुड बी एटलीस्ट 90 कंप्रेशन पर मिनट. तो उसकी जो हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, वेंटिलेशन इज आल्सो नेसेसरी, क्योंकि बच्चा ब्रीथ भी नहीं कर रहा है, तो चेस्ट कंप्रेशन आर नेवर डन अलोन. पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज ऑलवेज डन विद द chest compression is always done with the positive pressure ventilation. तो रेशियो क्या होगा? 30 breaths and 90 compression. तो इस तरह से हम करेंगे कि
फर्स्ट कंप्रेशन किया 1 2 3 देन ब्रीथ 1 2 3 ब्रीथ 1 2 3 ब्रीथ इस तरीके से 1 2 3 क्या है चेस्ट कंप्रेशन हम जो दबा रहे हैं चेस्ट को स्टर्नम जो पोजीशन बताई उस पे दिस इज हाउ चेस्ट कंप्रेशन इज डन ये हम निप्पल लाइंस के जस्ट नीचे जो है स्टर्नम पे रखेंगे फिंगर्स यहाँ गलत दी हैं इसलिए सेकंड इमेज रखिए फिंगर शुड बी परपेंडिकुलर जो है और प्रॉपरली अप्लाइड विद ईच चेस्ट कंप्रेशन वी शुड नॉट रिमूव द फिंगर्स देयर आर सो मैनी प्रिकॉशंस एक छोटे से लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती हैं बट we should not remove the fingers after every chest compression we should uh, keep the fingers placed over chest but we should not uh, keep the pressure going we should release the pressure but not finger and finger should always be in perpendicular position there should be no nails तो nails होंगे तो इंजरी हो सकता है बेबी को एंड अनदर टेक्निक इज थंब उसमें हम चेस्ट को एनसर्कल करके वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करके अपने फिंगर से थंब से प्रेस कर सकते हैं दैट इज बेटर बिकॉज फिंगर्स में जल्दी जो है थकान हो सकती है आप उतनी रेट से जो है चेस्ट कंप्रेशन नहीं कॉज कर सकते हैं बट दिस रिक्वायर्स टू रिसोसिटेटर्स जो थंब वाली टेक्निक है इसमें 2 रिसोसिटेटर मस्ट है तो चेस्ट कंप्रेशन अगर हमने कर लिया एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू रेज द हार्ट रेट और वी आर नॉट एबल टू मेक इफेक्टिव सर्कुलेशन देन we have to use various drugs और drugs में first and foremost is epinephrine what is the indication of epinephrine if the heart rate have not increased to the 60 or more तो 60 से नीचे हार्ट रेट है आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ इफेक्टिव असिस्टेड वेंटिलेशन and another 30 second of coordinated chest compression and ventilation तो 30 सेकंड हमने चेस्ट कंप्रेशन भी कर लिया स्टिल हार्ट रेट इज लेस देन 60 तो हम अगली बार बात करेंगे कि 30 सेकंड के साइकिल कैसे हम बनाते हैं वो अगली बार की अगले सेशन में हम बात करेंगे तो अगर हार्ट रेट चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी परसिस्टेंटली लेस देन 60 आ रहा है देन वी हैव टू स्टिमुलेट द हार्ट विद द एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की डोज जो हम प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं यूजुअली एपिनेफ्रिन कम्स एज 1:1000 रेशो वाला एपिनेफ्रिन हमारे पास जो है मार्केट में अवेलेबल एंड यूज करते हैं हम 10,000 के लिए तो उसको डाइल्यूट करते हैं और उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की जो हम डोज देते हैं इट इज 1.1 to 0.3 ml पर केजी आईवी आईवी कहाँ से लगाएंगे हम लाइकल वेन में देंगे यूजुअली एंड वी विल फ्लश विद 1 to 2 ml ऑफ द लाइन क्योंकि वो बहुत कम डोज बनेगा अगर 3 kg का भी बचा है तो अराउंड 1 ml हमारे पास डोज बनती है तो 1 ml अगर हम अम्लाइकल वेन में डालेंगे तो हार्ट तक पहुंचाने के लिए वी हैव टू गिव saline bolus or flush with the saline so that that particular dose of epinephrine reaches heart and जो है एक्शन उसका हो देन इंट्राट्रैकियल भी दे सकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी डोज हमको ज़्यादा देनी पड़ती है अप टू 1 ml पर केजी जो है इंट्राट्रैकियल हम दे सकते हैं और उसके बाद जो हम चेस्ट कंप्रेशन विल बी कंटिन्यूड ड्यूरिंग एपिनेफ्रिन आफ्टर एपिनेफ्रिन अगर चेस्ट कंप्रेशन हम कर रहे हैं एंड स्टिल जो है we are not able to revive the child or heart rate is still not improving then we can repeat this epinephrine dose for 3 cycles every 3 to 5 minutes 3 साइकिल तक हम दे सकते हैं 3 से 5 मिनट के अंतराल पे या till heart rate is more than 60 another medication हम एपिनेफ्रिन भी दे रहे हैं बट देर इज ब्लड लॉस वॉल्यूम ही नहीं है ब्लड वॉल्यूम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है बेबी तो वहाँ पे हम वॉल्यूम एक्सपेंडर कंसीडर करते हैं एंड कैसे पता चलता है वॉल्यूम एक्सपेंडर लगाना है तो इफ देयर इज पुअर रिस्पॉन्स टू द रिससिटेशन there are features on the examination of baby feature of shock like pale है baby वीक पल्सेस हैं या परसिस्टेंटली लो हार्ट रेट है इवन एपिनेफ्रिन देने के बाद भी और हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि देयर वाज सम फीटल लॉस लाइक एंटीपार्टम हेमरेज हुआ प्लेसेंटा प्रीविया हुआ था या एब्रेप्सी प्लेसेंटा वगैरह है या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन है 2 बच्चे हैं ट्विंस हुए हैं तो वहाँ पे भी एक बेबी में हो सकता है कि एक बेबी से दूसरे बेबी में गया हो तो
वॉल्यूम लॉस की वाली कंडीशन में जो यूजली हम वॉल्यूम एक्सपेंडर लगाएंगे, और वॉल्यूम एक्सपेंडर में जो बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो नॉर्मल सलाइन जो यूजली हम यूज़ करते हैं, और डोज क्या रहती है 10 ml पर kg। अम्लाइकल बेन में देते हैं, स्लो देते हैं, ओवर 5 to 10 मिनट्स जो हम देते हैं, और रिस्पॉन्स देखते हैं तब तक रिससिटेशन विल बी कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस गिविंग ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंडर। लास्ट चीज जो उसमें है कि समटाइम एसिडोसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड वी आर एबल टू मेंटेन सर्कुलेशन, हार्ट रेट मेंटेन कर पा रहे हैं हम चेस्ट कंप्रेशन से, ब्रीदिंग मेंटेन कर पा रहे हैं वेंटिलेशन से, बट स्टिल बेबी इज नॉट रिवाइविंग, देयर में बी सीवियर एसिडोसिस। और सीवियर एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो उसको हम जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है पल्मोनरी आर्टरियोल जो है कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे, और ब्लड जो है लंग्स में नहीं जाएगा। इसलिए सोडियम कार्बोनेट का जुडिशियस यूज may be needed in metabolic acidosis, but usually it is indicated when we are having blood analysis of the gases. तो जब हमने परफ्यूजन वॉल्यूम एक्सपेंडर से जो है करेक्ट कर लिया है, तब हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, और वेंटिलेशन अच्छे से दे रहे हैं तभी हम जो सोडा बाई का यूज़ करेंगे। अगर वेंटिलेशन नहीं हो रही है, प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं हम बेबी को, तो सोडा बाइकार्ब फर्दर विल इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो सोडा बाइकार्ब का यूज जो है बहुत सोच समझ के करना होता है एसिडोसिस वाली कंडीशन में। तो this was all about various procedures or drugs used during resuscitation. इस क्लास में हमने बात करी कि क्या करना है और कैसे करना है, कि कैसे हमने सक्शन करना है, कैसे हमने पोजीशन करना है बेबी को एयरबेस पेटेंसी के लिए, कैसे हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है बाय ड्राइंग और बाय पुटिंग द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर और कवरिंग, और कैसे जो हमने रेस्पिरेशन दिस ब्रीदिंग स्टार्ट करवाना है स्टिमुलेशन से, या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कैसे देनी है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन किसको बोलते हैं, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, देन सर्कुलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, चेस्ट कंप्रेशन कराना है, या ड्रग्स का यूज़ करना है, ड्रग्स में भी कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, कि कैसे जो है हम सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करके क्या क्या प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। तो रिससिटेशन एल्गोरिदम की जो बात है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। आप लोग जो है वीडियोस देखिए, क्वेरीज आपकी नहीं आती, ना ही आपका फीडबैक आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करें कि साथ साथ पढ़ लें, पेंडिंग ना रखें उसको, है ना। कोई भी लेक्चर पेंडिंग रहेगा तो बाद में चीज़ें जो है टफ होती जाएंगी, बहुत सारा सिलेबस है, तो टाइम से जो है इस चीज़ को सुन लीजिए। थैंक यू।